one and all present here, respected faculty members, our guest speaker, and all my dear students. Today, I, Rudrakshi Chaudhary, And I am Ayuri. are here in front of you and organizing this event for all of you. Today, we have Dr. Manish Kumar with us, who is guest speaker for today. He is a seasoned professional with over 15 of extensive experience development industry. He played a key role in corporation training, institutional collaboration and providing comprehensive support. Currently he is working as manager of institution and corporate education private limited in Noida. He is dedicated to bridging the gap between requirements and academic circulars, facilitating internships, peer programs to enhance the skills of students and professional alike. Now, I would like to invite him on the stage to start the session. Good morning, students. Good morning, everybody. So I request जितने भी लास्ट में बैठे हुए ना कैंडिडेट प्लीज आगे आ जाइए. Come forward. So students, shall we start? Sure. So very good morning all of you. Guys, my name is Manish Rana. Working from last 15 years in this IT industry. Have worked with many big brands. Started my career with HCL. And I worked with CMC Limited, which was a subsidiary of TCS. I worked with IBM Career Education. And then worked with Oracle Workforce Development, One Tick Technologies, and now working with AppSquared Software Private Limited, and which is having their one vertical, that is CodeSquared. I hope आपके कॉलेज से हमारे पास so many times students are coming for the industry visit. I don't know आपको अभी वो opportunity मिली नहीं मिली, but I have given one approval to your college that very soon you will also come for the industry visit in our software development company. आप लोगों ने कभी कोई visit किया है किसी कंपनी में? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में गए हैं आप सभी? नहीं गए हैं. Have you seen seeing developers जो एक particular platform पे काम कर रहे हैं उनके बीच में कभी आप पहुंचे हो? चलो, very soon I will give you this opportunity. Fine, so let's start this today's session. Current trends in IT industry. I'll ask a question. हम सभी मोबाइल फोन यूज करते हैं. टाइम टू टाइम हमारे पास एक ऑप्शन आता है उसमें अपडेट. सभी के पास आता है? अब देखो जितना भी टाइम मैं आपके साथ हूं ना, 45 मिनट्स 1 आवर, इससे ज्यादा भी अगर जाता है, कंप्लीटली डिपेंड करता है हम कितना इसको इंटरेक्टिव रखते हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, हम वो अपडेट का ऑप्शन जो हमारे पास आता है क्या हम उसे इग्नोर कर सकते हैं? यस, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड जो भी इस पे आंसर कर सके मुझे. हमारा जो अपडेट वाला ऑप्शन आता है हम उसे इग्नोर करते हैं कभी? क्यों इग्नोर नहीं करते हैं?
देखो कोई बुकिश क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं अभी जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। कोई बताएगा? यस प्लीज। नए फीचर्स आते हैं उसमें और बग्स को फिक्स करते हैं। एनीथिंग एल्स? देखो दोनों आंसर दिए बहुत करेक्ट हैं। इसके अलावा भी कुछ है? बता दिया उन्होंने। देखो हम जब भी कोई अपडेट का ऑप्शन आता है तो सबसे पहला रीजन या तो हो सकता है उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं एंड सेकंड उसमें कुछ बग्स हैं अगर जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। बिकॉज इफ देयर इज एनी वल्नरेबिलिटी तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है, हम अपडेट करें जिससे कि हम उस वल्नरेबिलिटी से दूर हो सके और अपने जो डिवाइस है उसको हम हैक होने से बचा सके। डू वी एवर ट्राई टू डू दिस इन आवर पर्सनल लाइफ? हमारे सामने भी वो बग्स हैं, हमारे पास भी ऐसे अपडेटेड फीचर्स हैं। क्या हम कभी कोशिश करते हैं कि हमारी जो लाइफ है, हम जो एक प्रोडक्ट है, हम अपने आप को भी अपडेट करें? और वो फीचर्स क्या हैं जिनकी हमें जरूरत है अपडेट करने की? These are the updated technologies. टेक्नोलॉजीज में जितना भी अपडेशन हो रहा है क्या हमें पता होता है? वो नहीं। And what are these bugs? कोई बताएगा क्या है ये vulnerabilities जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं? अभी तक हम सिस्टम की बात कर रहे थे, now I'm talking about my life. Being into BCA, what can be the bugs for you? सोचो गाइस, कंपटीशन हो सकता है। देखिए जहां पे भी हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, whether we are going in a software development company or any company HR is coming to your campus, they are having certain number of requirements, but apply हम सभी करते हैं। Out of 100 candidates, if I am having 20 to 25 openings, so anyhow I have to remove 75 students from that round. ये करना पड़ेगा मुझे, और उसके लिए क्या होगा? ये मेरे लिए कहते हैं ना, आप सभी के लिए एक कंपटीशन है कि you have to be better than these 75 students. You all have studied same syllabus, you have studied similar technologies, क्योंकि जो सिलेबस आपने पढ़ा है उसी को आपने एक्सप्लोर भी किया होगा, इंटर्नशिप भी की होगी आपने। But who is going to encash that opportunity? एक ऐसा कैंडिडेट जिसने अपने आप को अपडेट रखा है, he is aware about all the tools and technologies what exactly is running in the industries, प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। बिकॉज कोई भी कंपनी जब आपके कैंपस में आती है, so they are not coming to hire students, they are coming to hire some professionals. वो प्रोफेशनल स्किल्स हमारे पास कहां से आती है? when we have gone through some certain stages in our academics, और वो हमारे पास एक एक्सपीरियंस होता है हमारी इंटर्नशिप का, along with our academics when we are generating some skills. ठीक है, these skills are other than academics. तो हमारे पास हम दो स्किल्स की बात करते हैं हमेशा, one is academic skills and second was industry skills. जब हम इन दोनों के बीच में ब्रिज कर देते हैं, then guys we are making ourselves employable. So I am coming from a software development company, AppSquares, which is having their presence in multiple countries. We are in US, UK, Dubai, Singapore, Malaysia. In India we are at Hyderabad. In Noida we are at sector 63, and very soon we are going to have another location in Greater Noida as well. So we also hire candidates from different campuses. हम भी क्या देखते हैं कैंडिडेट के अंदर? सबसे पहले एक कैंडिडेट जिसके पास स्किल सेट हो जो हमारी टेक्नोलॉजीज पे काम करे। Many times we don't see कि उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज आती हो, बट वी सी क्या उसके पास लर्निंग एबिलिटीज हैं, जो बेसिक्स उसने पढ़े हुए हैं वो कितने अच्छे से उसे आते हैं, एंड इफ वी आर गोइंग टू ट्रेन हिम तो कितना ही फोकस्ड है। सो एटीट्यूड हमारा बहुत ज्यादा मैटर करता है। फाइन, सो these are the services जो जिन पे हमारी कंपनी काम करती है। We are into mobile application, we are into development, cloud services, AWS के हम प्राइम पार्टनर हैं। इस पूरे रीजन में जितनी भी क्लाउड सर्विसेज जाती है वो हमारे थ्रू होकर जाती है। जितने भी हमारे टॉप एडटेक कंपनीज हैं उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें बहुत सारे नेम आप लोगों ने सुने होंगे, फिजिक्स वाला, खान सर, दृष्टि IAS, ये सभी हमारे क्लाइंट हैं। जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये अपनी क्लासेस डिलीवर करते हैं, दैट इज वीडियो क्लिप, वो हमारी ही कंपनी बनाती है। अभी डिज्नी हॉटस्टार के बारे में आपने सुना है? OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में अच्छे से जानते हो? डिज्नी हॉटस्टार इज नाउ जियो हॉटस्टार। तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स भी हमारी कंपनी बनाती है। अभी रिसेंटली वी हैव मेड एन OTT प्लेटफॉर्म फॉर दूरदर्शन
with the name of Waves, WAVES. You can check it on the Play Store. अगर आप चाहो से you can see the entire हमारा जो past culture था, जितनी भी चीजें हमारा दूरदर्शन पे आती थी वो सभी अपलोड हो चुकी हैं. And you are now directly connected with Government of India for their any updates, any information they want to give to you. So with that application you can connect with them. So these are some of our clients. इसमें आज तक डिजिटल, ममाज अर्थ, फिजिक्स वाला, फोर्टिस, डिज्नी हॉटस्टार. एंड गाइस, हमारी दो ऑर्गेनाइजेशन है, एप स्क्वाड्स एंड कोड स्क्वाड. जैसा मैंने बताया, जो ट्रेनिंग डिवीजन हमारी एक है कोड स्क्वाड, जहां पे कंटिन्यूअसली हमारे पास इंटर्न्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट बीटेक बीसीए कॉलेजेस. एंड फॉर दीज स्टूडेंट्स हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, इनको रिक्वायरमेंट्स होती है, तो दे पीपल कंडक्ट सम इंटरव्यूज आल्सो. समटाइम व्हेन वी डोंट गेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम कॉलेज, तो आपके पास एक अनदर सपोर्ट होती है हमारी साइड से कि हम इन प्लेसमेंट ड्राइव्स में आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं. बशर्ते यू शुड हैव दैट स्किल सेट. जो भी रिक्वायरमेंट है इन कंपनीज की, वो मैं आपके साथ में एट द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा कुछ इंफॉर्मेशन, जिससे कि आई कैन कनेक्ट यू फॉर द प्लेसमेंट्स इन माय कंपनी. ठीक है, जब आप यहां से एग्जिट करोगे, सो यू नीड some people who can help you in these opportunities. Now a term is there on the screen, employability. Can anybody explain me what do you understand by the term employability? Yes, please. You can? A person, when he is able to be an employed one, then it is known as employability. And Great. Can we have clap for her? और कोई ट्राई करेगा? She is correct. But if someone want to add some more things, so you can. Yes. Guys, देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. From last 15 years, I have seen so many college university students. जब टेक्निकल राउंड से वो बाहर निकलते हैं ना, तो पता है एक छोटा सा आंसर उनके पास होता है. सर, मेरे को ना इस क्वेश्चन का आंसर पता था, बट मैं बोल नहीं पाया. एंड ये स्टेटमेंट मैं पिछले 15 साल से लगातार सुनता आ रहा हूँ. उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हम कोशिश नहीं करते. हमारे पास आंसर होता है, हमें लगता है कि गलत होगा. एंड समटाइम हम जो पीछे वाले बच्चे जो हंसते हैं ना, हम उस डर से हम कभी कोशिश नहीं करते. और यही रीजन है राइट टाइम पे हम नहीं बोल पाते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है. एम्प्लॉयबिलिटी, इन्होंने बताया हमारे पास वो सारी स्किल्स हैं, वो एबिलिटीज जो हमें प्लेस कराएं. हमारे पास ऐसे स्किल्स हैं जिससे हम प्लेसेबल हो जाएं. ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी में क्या क्या स्किल्स को ऐड करते हो? कम्युनिकेशन स्किल्स, पहला राउंड क्लियर कर लेंगे हम इससे. टेक्निकल स्किल्स में हम किस की बात कर रहे हैं? जो हमने एकेडमिक्स में पढ़ा है वो? no sir. और जो करंट रिक्वायरमेंट है कंपनी की. yes means all the latest technologies. ठीक है, we have 2 points, communication and technology जो आज लेटेस्ट मार्केट में चल रही है. What else? अगर मैं आपसे बोलूं आपकी कॉम स्किल्स अच्छी है and you have knowledge about all the latest technologies. Presentable confidence. Very good. Confidence. What else? Yes guys, you can try. हमारे इंटरव्यू के कितने राउंड होते हैं? 3 to 4. फर्स्ट राउंड कम्युनिकेशन, सेकंड एप्टी, थर्ड टेक्निकल एंड फोर्थ एचआर. इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन मेनली अगर हम देखते हैं तो हमारे इनिशियल 2 राउंड्स आर हमारा कम्युनिकेशन राउंड, जिसमें हमें जीडी में भी बिठा सकते हैं और हमें कोई रैंडमली 2 मिनट के लिए बोलने के लिए कहा जा सकता है. सेकंड वी हैव एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां पे क्वेश्चंस होते हैं आपके मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग से. नाउ आई एम टेलिंग यू वन हॉरिबल थिंग्स. व्हाट हैपेंस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनिशियल 2 राउंड्स में बाहर हो जाते हैं. वी आर स्टडीइंग फॉर द टेक्निकल राउंड. हम बीसीए में क्या पढ़ रहे हैं? टेक्निकल सब्जेक्ट. हम टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हमने पढ़ ली हैं. बट वो राउंड हमारा कब आएगा? थर्ड नंबर पे, जब हम इनिशियल 2 राउंड्स को क्वालिफाई करके आगे आएंगे. अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इनिशियल फर्स्ट और सेकंड राउंड में बाहर हो जाता हूं,
क्या गारंटी है मेरा टेक्निकल भी खराब होगा? So what I have to do, I have to make proper balance in all rounds. मुझे इनिशियल राउंड्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी मुझे टेक्निकल एंड एचआर राउंड को देनी है. एंड व्हाट जनरली हैपन इन एचआर राउंड? एचआर राउंड में क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन. यस सैलरी डिस्कशन. और देखो प्रोजेक्ट डिस्कशन आपका थर्ड राउंड में हो चुका है. आप सारे राउंड क्वालिफाई कर चुके हो. व्हाट हैपेंड इन फोर्थ राउंड? एचआर आपसे क्या श्योरिटी लेती है? बॉन्ड. सर ट्रस्टवर्दी रहेंगे कंपनी के. यस बिकॉज़ व्हाट हैपेंस, देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं ऑफर लेटर कलेक्ट करने के लिए. एंड व्हाट हैपेंस, जब उनको कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया है, at the time of joining they said that I'm not going to join your company because I have some other offers, so I'm joining there. And one company HR is waiting for you कि 1st of April से 10 candidates are joining me on one of my project. And what happens on that day? We are calling these candidates and these people are not taking calls. So in that round company आपको पहले ही documentation के लिए बुलाती है. अगर आप documentation करते हो उस दिन, then it means आप सीरियस हो ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप तभी सबमिट करोगे when you are actually looking for that option कि आप उसे अवेल करने वाले हो. Got it? So हमें इन 4 राउंड्स पे जब अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, we are employable when we have ability to crack all these 4 rounds. और उसके लिए we have to understand कि academic skills के साथ साथ we have to prepare ourselves for the technical skills as well. जो इस बच्चे ने भी बोला. What's your good name? Ritika. Ritika, what all these latest technologies are these days? The Python mainly, SQL for database, JavaScript, Java. That's also. ठीक है. As much I know, BCA students जितने भी यहाँ पढ़ रहे हैं, you are having your integration with data science also. So most of the students who have studied Python, data science, तो हमने इस पे बेस कोई प्रोजेक्ट भी बनाते हैं या हम अभी थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं इस पे? बनाते हैं सर. ठीक है, गुड. सो मैं आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट दिखाता हूँ. एवरी ईयर अराउंड 50 लाख स्टूडेंट्स हैं जो अपनी ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं. आउट ऑफ दीज 50, अराउंड 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हम ये बोल सकते हैं दीज आर एम्प्लॉयबल. मींस आई एम गुड इन एकेडमिक्स, मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी है, मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूँ एकेडमिक्स में, बट स्टिल व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड? आउट ऑफ दीज टॉप स्टूडेंट्स केवल 25% ऐसे हैं जिनको कंपनीज कहती हैं दीज आर गुड स्टूडेंट्स. Why these 75% students are not employable in spite of having very good percentage in their academics? So कोई बताएगा क्या रीजन हो सकता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस कैसे आता है? चलो एक छोटा सा मेरे को आंसर बताइए. प्रैक्टिस के थ्रू. हमारा कल एग्जाम है, आज अगर मैंने पढ़ाई नहीं की है, कॉन्फिडेंस होगा कल? अगर मैंने अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं, सो आई विल बी ईगर टू सी द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि सब आता है मुझे. तो कॉन्फिडेंस कम्स विद प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन हम करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा आपको. ठीक है. और व्हाट इज द रीजन? और क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि आप लोग अपने आप को देखते हो इसमें, हम एकेडमिक से जब बाहर निकलेंगे क्या हम इन 75% में आ रहे हैं, 25 में आ रहे हैं? सो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जानने बहुत जरूरी है. This is the biggest reason. See, there is a gap between the demand and supply. Demand is what? कि किन टेक्नोलॉजीज पे आज रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे पास किन टेक्नोलॉजीज पे प्रोजेक्ट्स हैं. आज हम बात करते हैं जावा टेक्नोलॉजी पे. सो हम अपने आप को कोर जावा से एडवांस जावा तक जब लेके आते हैं तो मिड में ही हम अपने आप को एग्जिट करा लेते हैं. बट व्हेन वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड एडवांस जावा तो हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स आते हैं जिसमें आपने नाम सुना होगा स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज. सभी ने सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू नो स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज? नहीं आती. और आज इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं सबसे ज्यादा हम काम किस पे कर रहे हैं? स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज पे. डेटा एनालिटिक्स के बारे में सभी ने सुना होगा. क्या होता है डेटा एनालिटिक्स?
डेटा को एनालाइज करना। कैसे एनालाइज करते हैं हम डेटा को? पास डेटा को पावर बीआई का यूज हम किस लिए करते हैं? डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। एनालिटिक्स में हम क्या क्या चीजें करते हैं? पहले थोड़ा सा हमें सबसे पहले क्लियर ये हो व्हाट एग्जैक्टली डेटा इज। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज डेटा? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक डेफिनेशन। Collection of characters, numbers, symbols, then raw data. एक डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने, raw facts and figure, that is data. And what is information? Organized data or relative data. देखिए केवल एक दो बच्चे हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सो मुझे एक चीज बताइए कि क्या ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास नहीं होगी? ये सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी है? पढ़ी है ना सभी ने? इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा, बोल सकते हैं? नाउ टेल मी, हमारे पास डेटा कितनी तरह का होता है? यूजर डेटा। आपने एक टर्म सुनी होगी, बिग डेटा। व्हाट इज बिग डेटा? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच इज कितना? 1 GB डेटा और टेराबाइट्स में उसकी और क्या फीचर्स होते हैं? हम किस डेटा को बोलते हैं कि यार ये डेटा मेरा बिग डेटा है? डेटा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, सर्वर्स पर होता है, उसे हम बिग डेटा बोलते हैं। कुछ आपने पढ़ा होगा 5V कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा, पढ़ा है? देखिए बिग डेटा हम किसे बोलते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा व्हिच इज हैविंग वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हिच कैन नॉट बी स्टोर्ड यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे 5V कंसेप्ट को फॉलो करता है, यानी वैल्यू, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेरासिटी। पढ़े आपने सभी? नहीं पढ़े? पढ़े हैं। सो इन सभी में से कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज वेरासिटी? mass into यस, मैंने बात करी है बिग डेटा। बिग डेटा मींस हम एक बोलते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास जनरेट हुआ है, लेकिन इसमें एक टर्म होती है जिसमें बोलते हैं अगर इस टर्म को फॉलो करेगा तो हम बोलेंगे ये डेटा मेरा बिग डेटा है, एंड दैट फॉलोज सम वीज। तो उसमें एक टर्म आती है वेरासिटी। कोई भी एक मुझे बता पाएगा कि वेरासिटी क्या होती है? यस, मेरे पास एवरी डे कुछ डेटा जनरेट होता है फेसबुक से, ठीक है? क्या मैं एक एवरेज लगा सकता हूं कि मेरे पास अगर पर डे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 10 GB डेटा जनरेट होता है, मैं मंथ के एंड में क्या मैं एवरेज लगा के दे सकता हूं कि मेरे पास एवरेज डेटा कितना आ रहा है? कितना? पर डे मेरे पास 10 GB आ रहा है, तो मंथ के एंड में 30 डेज तक मेरे पास 30 × 10 डिवाइड बाय कितना? कैसे निकालोगे एवरेज यार, बताओगे? ठीक है, तो मेरे पास 10 GB हो गया। लेकिन व्हाट वेरासिटी सेज कि हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि कुछ डेटा हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेप्शन केसेस में, लेट्स सपोज आज कोई इंसिडेंट हो जाता है और हम सभी अपने जो फीलिंग्स है वो कहां पे शेयर करते हैं? सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। मेरे पास एक साथ 50 GB डेटा मेरे पास आ गया, तो मुझे ऐसे डेटा को हटाना पड़ेगा, तभी मैं उसके एवरेज निकाल सकता हूं, क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी है ये कभी कभी होती है मेरे पास में। गॉट इट? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो बिग डेटा की। तो बिग डेटा इज व्हाट? अ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा व्हिच इज हैविंग वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हिच वी कैन नॉट स्टोर यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास दो तरह का डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। देखो ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो आपसे यही पूछी जाती है जब हम बात करते हैं डेटा साइंस पे, हायरिंग पे। स्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड कौन सा होता है? पर्टिकुलर फॉर्मेट, किस तरह का फॉर्मेट? एक दूसरे से रिलेटेड। यस यस यस, मेरे पास एक एक्सेल शीट है, उस एक्सेल शीट पे कोई एक एग्जांपल लेके बताओगे मुझे कि ये डेटा स्ट्रक्चर्ड है और ये अनस्ट्रक्चर्ड है? सर जैसे नेम अल्फाबेटिकली और सारे सिर्फ मार्क्स लिखे हैं, बट जो अनस्ट्रक्चर्ड होगा उसमें नेम भी उल्टे सीधे आ रहे हैं। यस यस यस, तो इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बताया। मेरे पास एक टेबल है और वो टेबल मेरे पास एक लार्ज स्केल पे है, वहां पे मेरे पास नेम के कॉलम में अगर नंबर्स दिए होंगे तो क्या मैं उसमें एनालिसिस कर पाऊंगा?
नहीं, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मुझे उस डेटा को स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा। जो नेम वाला कॉलम है उसमें सारे नेम होने चाहिए, जहां पे मेरे पास सैलरीज हैं वहां पे सारे नंबर्स होने चाहिए। अगर ये मेरा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है तो हम एनालिसिस नहीं कर सकते उसमें। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेक माय डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा होने के बाद में तब हम मूव करते हैं एनालिसिस में, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट गैप कि कौन कौन सी ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जिस पे सबसे ज्यादा डिमांड है। उन टेक्नोलॉजीज पे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। जब आपकी नीड और इंडस्ट्रीज की नीड दोनों मैच करेंगी, डेफिनेटली तब हमारे पास अच्छी जॉब्स होंगी और एटलीस्ट हम अपने आप को 25% में रख पाएंगे, ठीक है। मेरे को जॉब चाहिए बट आई एम नॉट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज। मैं अभी भी अपने आप को बस ये सोच के चलता हूं कि मैंने बेसिक चीजें पढ़ ली हैं, मुझे जॉब मिल जाएगी। एवरी टाइम आई हैव अपॉर्चुनिटीज इन माय कंपनी, चाहे वो मेरे पास फुल स्टैक डेवलपमेंट में है, चाहे वो हमारे पास एनालिटिक्स में है, क्लाउड में है, हर टाइम हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। बट व्हाट आई हैव टू डू, I have to prepare myself according to the skill set. आपने कभी डिस्कस करते हो फाइनल ईयर स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे? गुड। एंड सेकेंड ईयर, नेक्स्ट ईयर आप भी इसी कैटेगरी में आओगे, तो यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड। जब भी हमारे पास किसी कंपनी से कोई जेडी आता है तो उस जेडी में ना टेक्निकल स्किल सेट रिक्वायरमेंट होती है कि उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैंने वो रिक्वायरमेंट समझ ली, आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ। मुझे यही नहीं पता है कि वो कंपनी हायर किसके लिए कर रही है, so मैं उस इंटरव्यू को क्लियर करने में I'll be unable. And if I know the skill set कि यार ये कंपनी काम करती है क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे या ये काम करती है फुल स्टैक डेवलपमेंट पे, तो इनके पास रिक्वायरमेंट इधर फॉर द फ्रंट एंड डेवलपमेंट होगी या बैक एंड डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इफ आई एम गुड इन फ्रंट एंड, डेफिनेटली मैं उनको जाके बता दूंगा सर आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोल, तो वो मेरे से क्वेश्चन फ्रंट एंड पे पूछेंगे। कई बार हम क्या बोलते हैं सर जिसमें आप पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर ऑल। And then they start testing you. ठीक है, अगर आपको सब कुछ आता है वो टफ से टफ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगर आपने बोल दिया सर मुझे फ्रंट एंड आता है, मैं फ्रंट एंड पे कहीं से क्वेश्चन पूछिए, the last question from the front end, वो बैक एंड से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो बी स्पेसिफिक। और आप जब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने ये क्लियर होना चाहिए कि मैं किस रोल के लिए अपने आप को रेडी कर रहा हूं, ठीक है। दो टर्म्स है आपके सामने, नॉलेज एंड स्किल। बहुत लुक सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। कोई बताएगा क्या डिफरेंस है? ये जो डिमांड सप्लाई का भी हमने गैप दिखाया था ना, यही आकर के क्लियर हो जाता है वो। यस, व्हाट्स द डिफरेंस? नॉलेज क्या, नॉलेज हम किसे बोलते हैं? नॉलेज जो हम डे टू डे लाइफ से सीखते हैं, ठीक है। एंड व्हाट स्किल्स? जिसके लिए हम ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसको सीखनी पड़ती है वो। यस, व्हाट एल्स? कोई और बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल्स? यस सर, नॉलेज बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट होता है, बट स्किल सर थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल भी होता है। करेक्ट, करेक्ट। क्या नाम है बच्चे आपका? अनुराग तिवारी। अनुराग। कैन वी हैव क्लैप फॉर अनुराग? देखिए, हम जब बात करते हैं ना इंटरव्यूज पे कि यार मेरे पास किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे अच्छा स्किल सेट है, मेरे पास प्रोजेक्ट नॉलेज है, तो मैं बात करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया, मींस मैं फ्रेशर नहीं हूँ। अब एकेडमिक्स के साथ साथ मेरे पास एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में काम करने का। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ केवल मैंने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, मैंने एंड्रॉइड पढ़ लिया है बट मैंने आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं बनाई है, इट मींस मेरे पास थियोरेटिकल नॉलेज है। आई नो, मेरे से एंड्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन कोई पूछेगा मैं बता दूंगा व्हाट इज एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के मैं सारे वर्जन्स बता दूंगा, एंड्रॉइड के मैं बारे में सारी चीजें जानता हूं। लेकिन क्या मैंने कभी कोई एप्लीकेशन बनाई है? मेरी प्ले स्टोर पे कोई ऐप है? और एक कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि जब आप एक डेवलपर हो सो आपकी डेवलपमेंट आप मुझे दिखाइए। सो जो हम बात करते हैं यहाँ पे स्किल्स की, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड व्हिच इज मिसिंग इन द स्टूडेंट्स दीस डेज। हम पढ़ते हैं सारी चीजें, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है, वहां पर हम पीछे रह जाते हैं। इसीलिए हमारी यूनिवर्सिटी हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि गो टू द इंडस्ट्री एंड वहां जाकर के प्रोजेक्ट्स पे काम करिए। मिलता है सभी को चांस। हमें 1 महीने 2 महीने 45 डेज व्हाटएवर ड्यूरेशन योर यूनिवर्सिटी गिव टू यू, बट आप सभी को चांस मिलता है। उस ड्यूरेशन को हमें यूटिलाइज करना है। हमें जाके सबसे पहले समझना है किन टेक्नोलॉजीज पे मैं काम करूं। अगर किसी भी कंपनी में आप जाते हो, वहां जाकर के देखिए क्या मुझे सीखने को कुछ मिल रहा है। अगर आप वहां जाकर के डेटा एंट्री कर रहे हो
ठीक है, तो वो आपका काम है क्या? नहीं। कॉलिंग कर रहे हो वो आपका काम है, बट स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस क्योंकि उसमें उनको स्टाइपेंड मिल रहा होता है। मुझे बताइए, क्या हमारी इंटर्नशिप हमें ये जो मिलती है स्टाइपेंड के लिए मिलती है बस? इट इज फॉर कैरिंग एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस हमें किस फील्ड में मिलना चाहिए? जिस एजुकेशन बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ। इफ आई एम अ BCA स्टूडेंट, डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर अ रोल कि मुझे कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी सिखा दे। एंड व्हेन यू कम टू माय कंपनी, हमारे पास भी इंटर्न्स आते हैं, तो वो इंटर्न्स हमारे किसके अंडर में काम करते हैं? टीम लीडर्स के अंडर में। वहां पे कुछ भी टास्क असाइन करते हैं हम आपको, चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का हो, चाहे वो डेटा से रिलेटेड हो, बट एटलीस्ट यू आर गेनिंग समथिंग। और उस इंफॉर्मेशन और उस स्किल्स के बेस पे अगर आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया, आई होप विद दैट प्रोजेक्ट यू कम बैक टू योर कॉलेज, और जब आप वाइवा आप देते हैं, यू शोकेस कि मैं क्या बन के आया हूं, एंड दैट स्किल इज हेल्पिंग यू इन गेटिंग प्लेसमेंट। गाइस, और कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हम बात करें कि मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी है एकेडमिक्स में, मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कोई भी कंपनी आपके कैंपस में आएगी, वो उनका एक प्रोसेस है, प्री डिफाइंड प्रोसेस होगा कि मुझे जाकर के पहले टेस्ट लेना है, तो वो टेस्ट लेंगे और आपको पहले ही बता देंगे कि जितने भी कैंडिडेट हैं इस टेस्ट में आउट ऑफ 100 अगर 60 मार्क्स लेकर आते हैं, दे विल बी इन फॉर द नेक्स्ट राउंड, रिमेनिंग गाइस कैन लीव फॉर द डे। सेकंड राउंड अगर उनका टेक्निकल राउंड में जब बैठ रहे हैं, 1-to-1 इफ दे आर इंटरेक्टिंग विद यू, आप अगर उनके क्वेश्चंस का आंसर दोगे, डेफिनेटली दे विल टेक यू फॉर द अनदर राउंड, अदरवाइज आप वहीं से बाहर हो जाते हो। अब जो कैंडिडेट इस क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है, कंपनी के लिए वो अच्छे बच्चे हैं, और कोई डेफिनेशन नहीं है अच्छे की। अगर हम बोले कि मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हूं तो कंपनी मुझे कंसीडर कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास कॉलेज से अप्रोच होती है कि सर ये जो बच्चा बाहर कर दिया तो बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने कहा सर इंटेलिजेंट है तो वहां पे नहीं बोल पा रहा था ये। और अभी रिसेंटली आई वाज इन अ कैंपस ड्राइव इन वन ऑफ द कॉलेज ऑफ मथुरा, एंड वहां पे कुछ स्टूडेंट्स थे जो बोल नहीं पा रहे थे, और मेरे पास रिकमेंडेशन थी सर ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैंने उन बच्चों पे बार बार फोकस किया, मैंने कहा बच्चे आप भी कुछ बोलिए, बट सीरियसली वो बच्चे नहीं बोल पा रहे थे। सो गाइस, व्हाट आई कैन डू, आई कैन गिव यू चांस, लेकिन अगर आप राइट टाइम पे क्लिक नहीं करोगे, नहीं बोलोगे, सो देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ गेटिंग जॉब। अगर मैं चाहूं भी तो अप्रोच के थ्रू टेक्निकल जॉब में अपने छोटे भाई को भी नहीं लगा सकता अगर उसके पास स्किल्स नहीं है। मैं एंट्री करा दूंगा, बट काम कैसे करेगा? जब तक फिंगर्स हमारी नहीं चलेंगी कीबोर्ड पे, तब तक मेरी जॉब डन नहीं होती है। सो गाइस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल स्किल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर एकेडमिक सिलेबस। हमने सिलेबस पढ़ लिया है, 60% अगर आपके हैं सफिशिएंट है। आप देख लीजिए जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, थ्रू आउट कितना मांगती है आपसे? 55, 60, 65, और आपकी परसेंटेज कितनी होती है? 80s में होती है। ठीक है, सो हमें थोड़ा बैलेंस बनाना है, क्योंकि हमारा पर्पस ये नहीं है कि मेरे को बस डिग्री ले जा करके अपने घर पे लगा दिया और उसके बाद आई एम डन विद माय जॉब। नहीं, उसके बाद हमारी टास्क स्टार्ट होती है, बिकॉज नाउ योर फैमिली, योर रिलेटिव, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर यू कि अब इस बच्चे के पास अच्छी जॉब लगने वाली है। बट आस्क दैट स्टूडेंट, वो क्या फील कर रहा है? अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसको, बट वो उनको क्रैक नहीं कर पा रहा है। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट जो बहुत अच्छे हैं, स्किल्स बहुत अच्छी है, बट मैं उनसे पूछता हूँ कितने इंटरव्यू आपने अब तक अटेंड किए? सर 8 to 10 इंटरव्यूज दे चुका हूँ, फेल होता जा रहा हूँ। तो एक कॉलेज या एनीबॉडी, हाउ मेनी अपॉर्चुनिटी कैन गिव टू यू? बट समहाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज। अगर आप उनको इनकैश नहीं करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा आप खुद अपने आप से हार जाते हो। सो उसका एक ही तरीका है, बस आप अपने आप को उन अपॉर्चुनिटी के लिए पहले प्रिपेयर करो, बिकॉज योर जॉब नीड 2 things फ्रॉम यू। 1, opportunities. Second, preparation to encash these opportunities. And what comes in that preparation? Skills that a company is looking in you. If you have all these skills, definitely we are always ready to hire you. मेरे पास हर टाइम इतनी ओपनिंग्स होती है कि अगर मैं बात करूं ना, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, so in 2 to 3 months I can provide opportunity to everybody sitting in this seminar hall on different technologies. और ये कंपनी जितनी भी जो हायर करती है, कुछ मेरी खुद की कंपनी है, मेरे क्लाइंट्स हैं, हर टाइम रिक्वायरमेंट होती है, बट
आपके काम ये अपॉर्चुनिटी तभी आ सकती है जब आपके पास वो स्किल सेट होगा। मैं आपको केवल अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, जॉब नहीं। जॉब आप खुद लेते हो, ठीक है? सो लेट्स मूव। यस, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में कोई डिफरेंस बताएगा मुझे? आप सभी डेटा साइंस पढ़ते हो, तो आई एक्सपेक्ट यू कैन गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़ा होगा अपने सिलेबस में भी। यस, कौन बताएगा प्लीज? प्राइमरी डेटा। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं आपको, आज जितने भी स्टूडेंट इस सेशन में इंटरेक्टिव है ना, मैं लास्ट में उन सभी से मिलूंगा और उनको मैं पक्का कुछ अपॉर्चुनिटी देके जाऊंगा, ठीक है? सो जितने भी स्टूडेंट इंटरेक्टिव हैं, आई एम assuring you that I will give you so many opportunities till the time you are not getting job. Okay? So yes, you can try now. सर प्राइमरी डेटा सर वो डेटा होता है जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, रॉ डेटा होता है जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो पहले से ऑलरेडी है, बस हम उसको ले रहे हैं और अपना Exactly. क्या सभी को इसका आंसर पता चल गया अभी? Yes sir. I want to check कि क्या वाकई में सुन भी रहे हो? इधर से कोई भी एक बताएगा इन्होंने क्या बोला अभी? कोई भी अपना हैंड रेज करके बता दीजिए, यस प्लीज। सर प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड डेटा होता है, डायरेक्टली कलेक्टेड होता है, और सेकंड हैंड होता है मैनिपुलेटेड और यूज डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा का कोई एक एग्जांपल देंगे आप? सर जैसे अपने कॉलेज से ही एग्जांपल दे दीजिए आप। कॉलेज में हम जनरली ये यूज करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। सर जैसे फैकल्टी ने मार्क्स नोट किए और किसी स्टूडेंट ने या सीनियर अथॉरिटी ने वो ले लिया, तो वो यूज हो गया। ठीक है, और कोई एग्जांपल? नोट्स बनाते हो, जूनियर्स को देते हो, तो आपने नोट्स खुद से बनाए हैं, ये क्या है आपका? आपके जो जूनियर्स हैं उस डेटा को यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी डेटा। क्लियर है अभी? प्लीज सिट डाउन। हमारे पास जो एनालिटिक्स होती है कितने तरह की होती है? इसको हम ना एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के डिस्कस करेंगे, ठीक है? वी विल टेक 15-20 मोर मिनट्स। हमारे पास एनालिटिक्स का एग्जांपल लेते हैं, एक यू कैन टेक इट एज अ एग्जांपल ऑफ ए मॉल। एक शॉपिंग मॉल का एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक शॉप का एग्जांपल ले लेते हैं। एक शॉप है आपके नियर बाय में, वहीं पे कुछ एक और शॉप खुली है। अब क्या हुआ, जब दो शॉप हो गई तो पहले वाले में कुछ उनको चैलेंजेस आए हैं, जिसमें सबसे पहले क्या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बात करती है हमसे कि जब कोई भी मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आई तो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? या तो ऐसा हो सकता है कि मेरी सेल डिक्रीज हुई, मेरे पास कस्टमर्स का फुटफॉल थोड़ा कम हो गया है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस टॉक अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। नाउ सेकंड वन इज वी हैव डायग्नोस्टिक एनालिसिस कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे पास कोई भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मेरे पास फुटफॉल कम हुआ, मेरे पास सेल डिक्रीज हुई, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? प्राइसिंग और लोकेशन दोनों की सेम है। क्वालिटी, अगर हम बात करें क्वालिटी में थोड़ा बहुत चलो डिफरेंस होगा, प्राइसिंग मे बी द बिगर कंसर्न, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे आप जा रहे हैं एम्बियंस बहुत अच्छी लगी आपको, हाँ। और क्वांटिटी कम कर देते हैं। आपने देखा जब एक बराबर में एक बहुत एक अच्छा वी मॉल या विशाल मेगा मॉल टाइप का जब ओपन होता है या कोई रिलायंस स्टोर ओपन होता है, वो क्या करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर्स देते हैं और डिस्काउंट्स दे दिया, ऑफर्स दे दिया कि इतने का आप अगर परचेज करते हो तो आपको इतनी चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी, मिलता है ऐसा सब कुछ। तो ये मेरे सामने क्या है, ये कि इतने सारे मेरे पास रीजंस हैं कि मेरी जो सेल डिक्रीज हुई है सर इन वजह से हुई है। ये क्या है, अभी हम उस स्टेज पे हैं जहां पे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है? कि मेरे सामने एक सिचुएशन ऐसी आई है, मेरी सेल डिक्रीज हुई, उसका रीजन क्या क्या हुआ है, ये सारे रीजंस हैं। अब मेरे पास आता है थर्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस, कि ऐसा होने से अगर कंटिन्यूअसली ऐसा चलता रहा, मैंने पास्ट डेटा पूरा रीड किया, उस पास्ट डेटा को रीड करके मैं क्या देख रहा हूं कि अगर ऐसा चलता रहा कंटिन्यू तो सर अगले 6 महीने 1 साल में हम बिजनेस को अपने को लॉस में ले आएंगे, ठीक है? अभी हम किस स्टेज पे हैं?
वी आर एनालाइजिंग द डेटा। मैंने पूरा डेटा यहां तक लेके आ गया हूं कि अगर ये कंटिन्यूअसली ऐसे चलता रहा तो हमारा ग्राफ जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं डेटा के फ्लो को जिस डायरेक्शन में समझ पा रहा हूं, आने वाले कुछ टाइम में हमारी कंपनी लॉस में आ जाएगी। नाउ व्हाट शुड बी द प्रेस्क्रिप्टिव, क्या प्रेस्क्रिप्शन दोगे अब आप? सॉल्यूशन क्या हो सकती है? क्या स्ट्रेटजी बना के देगा एक एनालिस्ट आपको? वो स्ट्रेटजी मेरी क्या क्या हो सकती है आप बताएंगे प्लीज? प्राइस ड्रॉप करोगे? ऑफर्स प्रोवाइड क्रिएट करना, You have to give similar offers. You have to give coupons, discounts. और very good. You can try कि मैं आपका जो सामान है आपके घर पे डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है? मतलब you will try to give comfort to your customer, जिससे कि आप कस्टमर को अट्रैक्ट करना है जो आपके पास से डाइवर्ट हुआ है। फाइन, यहाँ पे ये स्ट्रेटजीज हम कब देंगे? जब एटलीस्ट मेरे पास उस स्टेज तक डेटा होगा। इसलिए जब कंपनीज डेटा एनालिस्ट को हायर करती हैं तो उनको पास डेटा देती है। मेरे पास जब मैं किसी भी मॉल में जाता हूँ, देखिए मैं प्रैक्टिकल चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप किसी भी मॉल में जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, लास्ट में आपसे मोबाइल नंबर मांगते हैं। वो क्यों मांगते हैं मोबाइल आपसे? यस, एडवर्टीजमेंट के लिए। कितनी बार कॉल आती है आपके पास? मैसेज आते हैं? मैसेज में क्या आता है? कितनी बार मैसेज आए आप लोगों के पास? जब कोई ऑफर आता है उसके लिए वो मैसेज आपने ब्लॉक कर रखे हैं मान लीजिए ऐसे एसएमएस। हम कई बार अनवांटेड एसएमएस हम नहीं चाहते कि मेरे पास आए, मैं ब्लॉक लिस्ट में डाल देता हूं, तो क्या करेंगे गाइस? हमारे उस डेटा पे वो कंटिन्यूअस एनालिसिस करते हैं। अगर मैं वहां का रेगुलर, सबसे पहले जाते ही वो चेक करेगा कि क्या मैं रेगुलर कस्टमर हूं यहाँ का। अगर मैं रेगुलर कस्टमर हूं तो मैंने लास्ट टाइम जब यहाँ पे विजिट किया था तो मैंने कितने का परचेज किया था? अगली बार मैं जब आया तो मेरी क्या परचेज इंक्रीज हुई या डिक्रीज हो रही है? और आपने एक चीज देखी होगी, जब आप किसी भी मॉल के अंदर जाते हो वहां पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, क्या आपको लगता है उसके पीछे कोई रीजन है या फिर वो जहां मर्जी कोई भी सामान रख दिया? नहीं, उसके पीछे रीजन है। रीजन होता है, क्या रीजन होता है? अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे सर वैरायटी स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे। बेबीज के टॉयज फैमिलीज होती है। तो जैसे गिफ्ट शॉप में गिफ्ट आगे अट्रैक्ट करते हैं, हमें सॉफ्टवेयर अट्रैक्ट करते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। उस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा, जब भी हम किसी स्टोर में जाते हैं वहां पे कोई भी अगर सामान रखा हुआ है, उसकी प्रॉपर लोकेशन अगर है तो उसका क्या रीजन है। मैंने अपनी लास्ट परचेज की, ऐसे ही बहुत सारे लोग गए होंगे। एट द एंड एक एनालिस्ट ये मुझे एनालाइज करके दे सकता है कि मेरे पास जितने भी कस्टमर्स डेली आते हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कॉमन प्रोडक्ट है सभी के। डेयरी प्रोडक्ट्स, लोग डेयरी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे आप जितनी बार भी जा रहे हो हर बार वो प्रोडक्ट जरूर खरीद रहे हो। आपके बराबर में जो बैठे हुए हैं वो भी जा रहे हैं, वो भी उन प्रोडक्ट को हर बार खरीद रहे हैं। मैंने एक एनालिसिस करके 6 to 7 ऐसे प्रोडक्ट निकाले हैं जिन्हें हर कोई परचेज कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या सोच सकता हूँ कि वो 6-7 प्रोडक्ट्स को मैं एक जगह पे रख दूं, आपको आराम से मिल जाए। क्या मेरी अप्रोच अच्छी होगी? सर वो उन चीजों को ऐसी जगह रखते हैं ताकि बगल की चीजें देखकर आप और अट्रैक्ट हो और उन्हें भी खरीदो। गाइस मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप सुनना और समझना फिर मुझे आंसर देना। मैंने जब एक मॉल का एनालिसिस किया, बाकी परचेज का मैंने एनालिसिस किया, तो मुझे पता चला देयर आर सो मेनी कस्टमर्स कमिंग एवरी डे इन दिस स्टोर। लेकिन जितने भी कस्टमर वहां पे आते हैं उनमें से वो अलग अलग प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, लेकिन 6 to 7 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट जितने भी लोग आते हैं खरीदते हैं उसे। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक केस दे दिया है। अब मुझे बताइए, मैं एक कंफर्ट ये दे सकता हूं अपने जो ऑनर है वहां पे या मैनेजर है कि सर ये 6 to 7 प्रोडक्ट है ना, ये सभी खरीदते हैं, क्यों ना हम इनको एक जगह पे रख दें, लोगों को आराम से जल्दी से वो परचेज करेंगे और लेके चले जाएंगे। फिर बाकी को तो वो देखेंगे ना। एग्जैक्टली। तो वो क्या करते हैं पता है, यहाँ पे अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है।
वो उन 6 to 7 प्रोडक्ट्स को पूरे अपने स्टोर के अंदर डिफरेंट लोकेशन पे डालेंगे, यानी एक प्रोडक्ट इस कॉर्नर में, दूसरा डिफरेंट कॉर्नर में। तो जब हम अपने उस प्रोडक्ट को, जो मेरी नीड का प्रोडक्ट है, जब उसे मैं सर्च करूंगा, पूरे स्टोर में घूमूंगा, और यही हमारे साथ डेली लाइफ में होता है। इनफैक्ट माय वाइफ से टू मी कि ये लिस्ट है, आप ये सामान लेके आ जाइए, और जब हम वापस आते हैं तो उसमें एडिशनल प्रोडक्ट बहुत सारे आ जाते हैं हमारे साथ। यानी मेरा बजट होता है 6 to 7,000 का, और मैं सामान लेके आ रहा हूँ 10 से 12,000 का। तो गाइस, मैंने तो उतना ही सामान खरीदा है जितना मैं अपनी लिस्ट के लेके गया था, लेकिन रिमेनिंग प्रोडक्ट उन्होंने मुझे बेचे हैं यूजिंग देयर टेक्नोलॉजी, यूजिंग माय बाइंग बिहेवियर। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वो मुझे दिखाना चाह रहे हैं कि अरे यार, ये भी आपकी नीड का प्रोडक्ट हो सकता है, आप इसे भी लेके जाइए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हम नहीं खरीदना चाहते, वो उसको किसी ऑफर के साथ हमें चिपका के दे देते हैं कि सर ये सस्ता प्रोडक्ट है, इसे भी ले जाइए, ये बहुत, इसके साथ ये डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ चले यार ले लेते हैं, आगे भी जरूरत पड़ेगा ये। उस टाइम नीड नहीं है, मेरी लिस्ट में वो सामान नहीं है, बट आई एम टेकिंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ सीइंग दैट ऑफर। किसी ना किसी प्रोडक्ट के साथ मुझे कंबाइन करके उसको दे दिया है। ठीक है, सो डेटा एनालिस्ट का काम यही है कि वो डेटा को रीड करता है। यहाँ पर डेटा क्या है? आप लोगों के मोबाइल नंबर्स, आपकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, उन्होंने आपके बाइंग बिहेवियर को रीड किया है, और यही एक एनालिस्ट की जॉब है कि कैसे वो उस स्टोर की या उस पर्टिकुलर जो भी एक मॉल है उसकी सेल को कैसे इंक्रीज करे। इसीलिए एनालिस्ट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक डेटा साइंस प्रोफाइल पे जब आप जाते हो तो सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स अगर स्टार्ट होती है, इट बिगिंस विद डेटा एनालिस्ट, जहां पे डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट जो डेटा को क्लीन करके मुझे दे रहा है, इनकी रिक्वायरमेंट हमारे पास सबसे ज्यादा होती है। सो अगर आपको अच्छी नॉलेज है एक्सेल, पावर बीआई, टैबल्यू, देन यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर जॉब एज ए फ्रेशर। सो डेटा साइंस क्या कहती है? आपने डेटा साइंस पढ़ी होगी। व्हाट इज डेटा साइंस? इसे देख के नहीं, डेटा साइंस क्या है? अभी हमने पढ़ा डेटा एनालिटिक्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा साइंस? यस, yes, am I audible till last? Yes, डेटा साइंस क्या है? जब मेरे पास डेटा आ चुका है, उस डेटा पे मुझे क्या करना है? मुझे उसमें हिडन पैटर्न्स ढूंढने हैं, मुझे डेटा के फ्लो को समझना है, जिसके लिए मैं क्या यूज करता हूं। आई एम यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, आई एम यूजिंग मैथ, आई एम यूजिंग माय एल्गोरिथम्स, कि मुझे एक कहते ना हिडन पैटर्न्स मैंने ढूंढ लिया, उस डेटा को यूज करके आई एम गिविंग सम प्रॉफिट। जैसे हमने अभी इस मॉल का जो एग्जांपल हमने लिया था, उसमें हमने क्या किया था? हमने डेटा साइंस को यूज किया, और लास्ट में आई एम गिविंग स्ट्रेटजीज टू द मैनेजर कि सर अगर आप ऐसा करने वाले हो ना, आपको 100% बिजनेस आएगा। ठीक है, सो गाइस, एक डेटा साइंटिस्ट का यही काम है, एक डेटा को कलेक्ट करने से लेकर के लास्ट में जब हम एनालिसिस करके देते हैं, इस बीच में जितनी भी हमारी जो मैथ्स है, स्टैट्स है, जितना भी हम पूरे एल्गोरिथम्स में लगा रहे हैं, ठीक है, ये काम अगर कोई बंदा करता है तो ही इज अ डेटा साइंटिस्ट। एंड इसका जो पूरा रोड मैप है, आपने वैसे सिलेबस में सारी चीजें पढ़ी हैं, बट दिस इज द एग्जैक्ट रोड मैप अगर आप अपने आप को एक डेटा साइंस प्रोफाइल में लेके जाते हो तो। ठीक है, दीज आर द बिजनेसेस जहां पे रिक्वायरमेंट है कि किस किस तरह के जॉब रोल्स हैं हमारे पास में। चाहे हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, हम बात करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, हम बात करते हैं रिटेल, मार्केटिंग, सेल्स, हम इनफैक्ट अगर बात करें ना हमारे जो ये पॉलिटिक्स है, वहां पे भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। समटाइम यू फाइंड कि यार इस पर्टिकुलर जो लीडर है, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, इसके बारे में नेगेटिव डिस्कशंस होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर कंसर्न पे सबसे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम पहले देयर वाज एन इलेक्शन इन हरियाणा, जहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज चैनल्स थे जिन्होंने बीजेपी को 70 to 75 सीट्स का एक रेशो दिया था इन देयर, जो हमारे ये कहते हैं ना प्रेडिक्शंस होती हैं एक दिन पहले, जितना भी हमारे जो कहते हैं ना व्हाट वी कॉल दैट वर्ड, एग्जिट पोल। सो उसमें देयर वाज वन डेटा साइंटिस्ट इन आज तक, प्रदीप गुप्ता।
They said that I need one more day. मैं कल बताऊंगा अपना एनालिसिस करके कि एग्जिट पोल में कौन सी जो पार्टी है कितनी सीट लेके आ रही है. एंड व्हाट ही सेड नेक्स्ट डे, ही शॉक्ड एवरीबडी कि उसने सिंपली बोला कि बीजेपी 40 से ज्यादा सीट नहीं लेके आने वाली है, जहां पर एवरी न्यूज चैनल वाज गिविंग 70 to 75 सीट्स आउट ऑफ 80, और एक न्यूज चैनल उसको 40 सीट दे रहा है, जिसमें जो बंदा था ही वाज अ डेटा साइंटिस्ट प्रदीप गुप्ता, और आपने देखा होगा जब रिजल्ट आया था तो बीजेपी की सीट 40 के आसपास ही थी. तो बिगेस्ट रीजन वाज कि उसने प्रॉपर डेटा को एनालाइज किया, उसने हर तरह से डेटा को कलेक्ट किया. कलेक्ट करने के बाद में जब उसने अपने एनालिसिस, अपने प्रेडिक्शन दी, तो दैट वाज बेस्ड ऑन सम एल्गोरिथम. उसने हवा में कोई सोशल मीडिया के डेटा को पढ़ने के बाद में केवल प्रेडिक्शन नहीं दी. इसीलिए हम बोलते हैं कि डेटा साइंटिस्ट जितने भी होते हैं उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट होती है. ठीक है, ये कुछ कंपनीज हैं जहां पे डेटा साइंस की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमारे पास इंडियन बेस्ड कंपनीज भी हैं और कुछ एमएनसीज हैं जहां पे क्रॉस ग्लोब यू कैन फाइंड योर करियर. How many of you know about the job of a full stack developer? Full stack development के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? आप डेटा साइंस के बारे में पढ़ते हो, बट अगर आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में भी आइडिया है, आई थिंक दैट्स मच बेटर फॉर यू, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जॉब्स, सो फुल स्टैक डेवलपर्स की इक्वली उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी आज हम डेटा साइंस पे बात करते हैं. एवरी वीक we have opportunities as a front end developers, back end developer. जो मैं Spring Boot micro services की बात की थी, it is part of your back end development. ठीक है, अगर आप अपना डेटा साइंस में अपना करियर प्लान नहीं करते हो तो you can have better option as a full stack developer, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे options हैं. You can look for mul stack, mean stack. आप Java पे काम कर सकते हो, Python के साथ आप Django एक हमारा फ्रेमवर्क है, उस पे अपने प्रोजेक्ट बना सकते हो. ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट फ्रंट एंड डेवलपर, यू हैव बेटर ऑप्शन विद रिएक्ट, एंगुलर एंड Vue.js. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने सुना है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ डिजिटल मार्केटर? क्यों एक कंपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रखती है? ये सारे वो पार्ट में बता रहा हूं जो डिपार्टमेंट्स एक कंपनी के अंदर होते हैं. ठीक है, इसलिए जिस भी डिपार्टमेंट की एग्जिस्टेंस अगर कंपनी में है तो वहां पे जॉब रोल होगा, वहां पे रिक्वायरमेंट्स होंगी. एक डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे का काम क्या होता है? एक लेमन लैंग्वेज में कोई भी मुझे आंसर दे सकता है. कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा मैं आपसे. अगर मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा रखा है तो उसका क्या रोल होगा, उसका मेन जॉब क्या होगी? यस, ब्रांड प्रमोशन. उसका पर्पस क्या है? मैंने ब्रांड प्रमोट कर दिया अपना, लीड्स जनरेट करना. मैंने आज अपना एक बिजनेस सेटअप किया है. ठीक है, दो अलग सेपरेट एंटिटी की बात कर रहा हूं. एक बिजनेस है जो पिछले 4-5 साल से ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, एक बिजनेस है जिसने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है. दोनों को लीड्स चाहिए, दोनों को फुटफॉल चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट तरह की टेक्निक होती है. एक जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जहां पे कहते हैं ना सर्च इंजन के थ्रू, मेरी वेबसाइट की रैंकिंग के थ्रू मेरे पास कस्टमर आ रहा है. ठीक है, सेकंड है जिसने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको अभी कोई जानता भी नहीं है, लेकिन वो भी चाहता है मेरे पास लीड जनरेट हो. तो वो लोग आते हैं थ्रू पेड एड्स, जिसे हम बोलते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक. तो ये जो एक हमारी जो एक अलग डिपार्टमेंट है डिजिटल मार्केटिंग, हर एक आईटी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग के लोग की जरूरत होती है. अगर आप लोगों को लगता है कि आई कैन प्लान माई करियर इन दैट फील्ड ऑल्सो, सो यू हैव बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स. हर टाइम रिक्वायरमेंट्स होती है, इसके लिए ऐसा नहीं है आप बीटेक, बीसीए या एमसीओ, एनी फील्ड ऑफ स्टूडेंट कैन अप्लाई इन दिस. ठीक है, सो गाइस दैट वाज बिट अबाउट टेक्नोलॉजीज. अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजीज बचती हैं, बट थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम है. आई हैव ऑलरेडी हैव सम एंगेजमेंट्स, सो मैं अपने सेशन को यहीं पे ओवर करूंगा. And I need one feedback from your side, and I'm giving you some links जहाँ पे आप अपने आप को prepare कर सकते हो through our online portals also. Yes, students, you can have click on this
ठीक है, आप ये जितने भी हमारे जो ये लिंक्स हैं, यहाँ पे हमारा स्टडी मटेरियल्स पड़ा होता है, ऑनलाइन यहाँ पे ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आप चाहो कि you want to study some data science concept, you want to understand full stack development course material, आपको कुछ वीडियोस पढ़ने हैं, तो through these links you can study it. And this is the last one. I need your feedback. So आप सभी के पास मोबाइल फोन होगा? Yes sir. आप प्लीज इसे स्कैन करके अपना एक फीडबैक सबमिट कर दीजिए, एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू फ्री यू फ्रॉम दिस सेशन. गाइस, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, आपने उसे फिल करना है, एंड आफ्टर दिस माय टास्क इज डन. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक्स. Now I would like to invite our respected director, Sir, Dr. Amit Rai, Sir, to come upon the stage and felicitate our guest for today. Now I would like to call Ms. Ishita Arora ma'am for vote of thanks. Thank you so much, Manish sir, for coming over here, taking out time and addressing all our students on this topic today. And it was indeed a very fruitful session for everybody, and I'm sure about it. And I really liked the energy that was there, and students were interacting. And thank you for taking this session in that way. And I'm pretty sure that they are going to take a lot today with themselves, and they have definitely learned about why skills and practical knowledge are very important in today's times to get any kind of job. So thank you so much for being here. And thank you to all the faculty members who are present over here. And thank you to my dear students for being such patient listeners, and my dear camera team for recording the whole session. Thank you everyone. Thank you.